हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 247 आर्टिकल यानी 247 अनुच्छेद कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति के बारे में। तो ये अनुच्छेद क्या कहता है? 247 article says power of parliament to provide for the establishment of certain additional courts. 247 article says power of parliament to provide for the establishment of certain additional courts. Notwithstanding anything in this chapter, Parliament may by law provide for the establishment of any additional courts for the better administration of laws made by Parliament or of any existing laws with respect to a matter enumerated in the Union list. क्या कह रहा है? 247 article says power of parliament to provide for the establishment of certain additional courts. Notwithstanding anything in this chapter, parliament may by law provide for the establishment of any additional courts for the better administration of laws made by parliament or of any existing laws with respect to a matter enumerated in the union list. 248 article says residuary powers of legislation. Residuary powers of legislation. Number 1, Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the concurrent list or state list. क्या कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट है उसको जो एक्सक्लूसिव पावर है, जो उससे बाहर की जो उसको शक्ति प्रदान की गई है, वो क्या कर सकता है? टू मेक एनी लॉ, कोई भी कानून बना सकता है विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स, किसी भी मामलों पर, नॉट इन्यूमरेटेड इन कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। यानी अवशिष्ट जो विधायी शक्तियां हैं उनके बारे में बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि संसद को किसी भी ऐसे विषय के संबंध में जो संवती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, उससे बाहर है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। ऐसी शक्ति के अंतर्गत ऐसे कर के अधिरोपण के लिए जो उन सूचियों में से किसी में वर्णित नहीं है, विधि बनाने की शक्ति है। तो ये कहा जा रहा है। यानी नंबर 2, सच पावर शेल इंक्लूड द पावर ऑफ मेकिंग एनी लॉ इम्पोजिंग अ टैक्स नॉट मेंशन्ड इन आइदर ऑफ दोज लिस्ट्स। 247 हो गया। 248 रेसिडुअरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन। Number 1, Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the concurrent list or state list. Number 2, such power shall include the power of making any law imposing a tax not mentioned in either of those lists. 249 article 249 आर्टिकल यानी 249 अनुच्छेद क्या कहता है? वो किसके बारे में कहता है? वो कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। 249 आर्टिकल पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट क्या कह रहा है कि राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है।
249 article says power of parliament to legislate with respect to a matter in the state list in the national interest. Number 1, notwithstanding anything in the foregoing provisions of this chapter, if the Council of States has declared by resolution supported by not less than two-thirds of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest, the Parliament should make laws with respect to any matter enumerated in the state list specified in the resolution. It shall be lawful for Parliament to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to that matter while the resolution remains in force. Number 2, a resolution passed under the clause first shall remain in force for such period not exceeding 1 year as may be specified therein. A resolution passed under clause first shall remain in force for such period not exceeding 1 year as may be specified therein. Provided that if and so often as a resolution provided that if and so often as a resolution approving the continuance in force of any such resolution is passed in manner provided in clause first, such resolution shall continue in force for a further period of 1 year from the date on which under this clause it would otherwise have ceased to be in force. Number 3, a law made by Parliament which Parliament would not but for the passing of resolution under clause first have been competent to have shall to the extent of the incompetency cease to have effect on the expiration of a period of 6 months after the resolution has ceased to be in force except as respects things done or omitted to be done before the expiration of the said period. अब मैं इसका हिंदी में पढ़ लेती हूँ क्या कहा जा रहा है। अनुच्छेद 248 अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। नंबर 1, संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो संमति सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है विधि बनाने की अनन्य शक्ति। नंबर 2, ऐसी शक्ति के अंतर्गत ऐसे कर के अधिरोपण के लिए जो उन सूचियों में से किसी में वर्णित नहीं है विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 247 अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी संसद अपने द्वारा बनाई गई विधियों के या किसी विद्यमान विधि के जो संघ सूची में प्रगणित विषय के संबंध में है अधिक अच्छे प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना, जो और अच्छे ढंग से देश में प्रशासन कायम करने के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी। ये शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को। अनुच्छेद 248 कहता है कि अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ जो रेसिड्यूरी पावर्स हैं उसके बारे में बात करता है।
संसद को रेसिड्यूरी जो पावर्स हैं उसमें भी कानून बनाने की अंतिम जो शक्ति है वो संसद को है, संविधान देता है। संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो संवर्ती सूची या राज्य सूची में परिगणित नहीं है विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। नंबर 2, ऐसी शक्ति के अंतर्गत ऐसे कर के अधिरोपण के लिए जो उन अनुसूचियों में से किसी में वर्णित नहीं है विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 249 कहता है राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके विषय में विधि बनाने की संसद की शक्ति, संसद को ही शक्ति प्राप्त है। नंबर 1, इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन है। इसमें क्या होता है, राज्यसभा में उपस्थित जो मत होते हैं, उपस्थित जो सदस्य होते हैं उनमें क्या होता है, मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 2/3 मेजोरिटी द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची में प्रगणित ऐसे विषय के संबंध में जो संकल्प में निर्दिष्ट है विधि बनाए, तो जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है संसद के लिए उस विषय के संबंध में पूरे भारत का जो संपूर्ण राज्य क्षेत्र है या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा, ये कहा जा रहा है। नंबर 2, खंड 1 के अधीन पारित संकल्प 1 वर्ष से अधिक ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा। 1 वर्ष से अधिक अवधि तक प्रवृत्त रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, परंतु जितनी बार किसी ऐसे को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड 1 में उपबंधित रीति से पारित हो जाता है, तो उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से जिसको वे इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त नहीं रहता है 1 वर्ष की और अवधि तक प्रवृत्त रहेगा, यानी उसको 1 वर्ष की अवधि तक और बढ़ाया जा सकेगा, यानी वो प्रवृत्त रहेगा, उसकी अवधि रहेगी। नंबर 3, संसद के द्वारा बनाई गई कोई विधि, संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून जिसे संसद खंड 1 के अधीन संकल्प के पारित होने के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होगी। क्या कहा जा रहा है कि नंबर 3 में संसद के द्वारा बनाई गई कोई विधि जिसे संसद खंड 1 के अधीन संकल्प के पारित होने के अभाव में, संकल्प जो पारित होता है उसके अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होगी। संकल्प के प्रवृत्त न रहने के पश्चात 6 माह की अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं रहेगी जिन्हें उक्त अवधि की समाप्ति से पहले किया गया है या करने का लोभ किया गया है, यानी उसका जो प्रभाव है वो 6 माह की अवधि पर ही समाप्त हो जाएगा या अक्षम हो जाएगा, जो भी उनमें बातें की गई हैं। तो कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 250। यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। क्या कहा जा रहा है, 250 आर्टिकल 250 बताता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट इफ अ प्रोक्लेमेशन। तो मैं ये इस अनुच्छेद को कल पढ़ूंगी। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र।